તો શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, સાંભળો, ભગવાનની વાર્તા કરીએ છીએ. પ્રકટો વર્તતે સદા. આ જીવને જ્યારે ભરતખંડ વિશે મનુષ્યથી આવે છે ત્યારે ભગવાનના અવતાર કાં ભગવાનના સાધુ એ જરૂર પૃથ્વી પર ઉછેરતા હોય. આજ તો ચમકનો પર્વત આવ્યો છે, તે સર્વે જીવને ખેંચી લે છે. જોયા જ કરું એવું ચરણોમાં બેસી જાઓ. divine presence. उसके महापुरुष का दर्शन ही काफी. આ બધા હરિભક્તો તમારા દર્શન કરવા સવારના 5 વાગ્યાના આવી જાય છે, તો તમારામાં એવું છે શું? આ પુરુષ તો અતિશય મોટા છે અને એને આગળ લાખો માણસ હાથ જોડીને ઊભા રહે છે. छोटी सी पिंड में पूरा ब्रह्मांड सब. जो तेज उनकी आंखों में है, And nobility comes from that face. His divinity personified. પણ આપણા કરતા તો આપણા ઉપર ભગવાનને ને સાધુને જાજુ હેત છે. હિત કરો છો, પ્રેમ કરો છો, એ કઈ રીતનો છે? નિસ્વાર્થ અને ભગવાન આપવા. અને જે તેનો સંગ કરે એનું પણ એવી જ જાતનું હિત કરે છે. બસ બધા તૈયાર થાય, મુક્ત થાય, એકાંતિક થાય, એ ભાવ. આવા સાધુને મનમાં સંભાળીએ તો મનના પાપ બળી જાય, ને વાતો સાંભળીએ તો કાનના પાપ બળી જાય, ને દર્શન કરીએ તો આંખના પાપ બળી જાય. એમ મહિમા જાણવો. મોહન સ્વામિનારાયણને ગરબાથી છૂટી ગયો અને વ્યસન મુક્ત થઈ ગયો. અને એટલું બધું પરિવર્તન એમાં આવી ગયું છે આપણે. આ એક ભગવાન સિવાય કોઈ ન કરી શકે. એવા અનંત આશ્ચર્ય છે તે સર્વે મને મળ્યા એવા જે ભગવાન તેના કર્યા જ થાય છે. નવા નવા કાર્યો કરતા રહો છો, એની પાછળ શું રહસ્ય છે? ભગવાનને મહારાજ સ્વામી જ કરે છે, પણ અમારા દ્વારા કરે છે. તે એના નેત્રમાં ભગવાન જોનારા છે અને એના પગમાં ચાલનારા ભગવાન છે. એમ એ સંતની સર્વે ઇન્દ્રિયોમાં ભગવાન રહ્યા છે. માટે પ્રગટપણાના સજાનના કેફમાં અલબસ જો અમારામાં મહારાજ રહ્યા છે અને એ બધું જાણે છે, બધું કરે છે. અમે ભગવાનના ધારક સંત છીએ કે અમારામાં મહારાજ રહ્યા છે. જે મહારાજ ગુણાત્યાન સ્વામી હતા, આમ ગુણાત્યાન સ્વામી, એ જ મહારાજ ભગતજીમાં, આમ ભગતજી મહારાજ, એ જ મહારાજ શાસ્ત્રી મહારાજમાં, આમ શાસ્ત્રીજી મહારાજ, એ જ મહારાજ યોગી આમ યોગીજી મહારાજ, અને એ જ મહારાજ પ્રમુખ સ્વામી. આમ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ. I am Sadhu Keshav Jimdas. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ કી જય. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય. ભગતજી મહારાજ કી જય. શાસ્ત્રીજી મહારાજ કી જય. યોગીજી મહારાજ કી જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કી જય. ગુરુહરિ મહંત સ્વામી મહારાજ કી જય. सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। अक्षर ब्रह्म गुणातीत सत्र में उपस्थित आप सभी हरिभक्तों को हार्दिक जय स्वामीनारायण। अक्षर ब्रह्म गुणातीत सत्र गुरु हरि महंत स्वामी महाराज का एक दिव्य संकल्प है। स्वामी श्री ने कहा है कि यह सत्र एक अमूल्य अवसर है, इसे कोई भी न चूके। इसी कारण पिछले 6 सत्रों से हम सभी धन्योस्मि पूर्ण कामोस्मि इस मध्यवर्ती विचार के साथ आयोजित अक्षर ब्रह्म सत्र का लाभ ले रहे हैं। कल हमने देखा कि भगवान स्वामीनारायण की भक्त वत्सलता आज भी गुरुहरि महंत स्वामी महाराज के द्वारा प्रकट है। भक्तों को प्रसन्न करने के लिए स्वामी श्री ने समय, शरीर, सुविधाओं की परवाह किए बिना अथक और अपार विचरण किया है। इसी श्रृंखला में आज हम स्वामी श्री के निस्वार्थ वात्सल्य के एक और पहलू के दर्शन करेंगे। भगवान स्वामीनारायण गढ़ड़ा अंत्य के 21वें वचनामृत में कहते हैं, ऐसे दृढ़ सत्संगी ही हमारे तो सगे संबंधी है
और वही हमारी ज्ञाति है। अतः प्रभु स्वयं भक्तों के सुख से सुखी और दुख से दुखी हुए हैं। सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी ने श्री जी महाराज के प्रेम का अनुभव करते हुए लिखा है, मारू मंदिर पोतानु रे जानी, भूधर सुख दुख माही भळ्या। भगवान स्वामीनारायण अपने भक्तों के सुख दुख में पूर्ण रूप से घुल मिल गए थे। जीवन यात्रा में प्राप्त यह दिव्य साथ जीवन का परम सौभाग्य है, जहां स्वयं भगवान के रूप में मां की ममता मिले, पिता की छत्र छाया मिले, भाई का सहारा मिले और मित्र का स्नेहपूर्ण हाथ मिले। फिर जीवन में और क्या चाहिए। भगवान स्वामीनारायण आज प्रकट है, इसीलिए उनका निस्वार्थ वात्सल्य भी आज प्रकट है। हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली है, क्योंकि हमें जीवन पथ पर गुरुहरि महंत स्वामी महाराज के रूप में साक्षात भगवान का साथ प्राप्त हुआ है। पल पल साथ निभाकर जिन्होंने हमारे जीवन को धन्यता से सराबोर कर दिया है, ऐसे गुरुहरि के निस्वार्थ वात्सल्य का अनुभव करें भक्तों के स्वानुभवों के माध्यम से। महाराज स्वामी એ જ પ્રાપ્તિ, જબરદસ્ત પ્રાપ્તિ થઈ છે, જેના પર કોઈ તથા કોઈ પ્રાપ્તિ નથી. આપણા એવા મોટા ભાગ્ય શ્રીજી મહારાજે આપણા બ્રહ્માંડને પસંદ કર્યું. બીજી કૃપા મહારાજની બહુ મોટી. મહારાજ પૃથ્વી ઉપર આવ્યા અને આપણે એમની સાથે અરસપરસ વાત કરી શક્યા, સુખ દુઃખમાં ભાગ લીધો, ઇન્ટરેક્શન, અરસપરસ વાતોચીતો, હળવું પડવું, બોલવું ચાલવું, એ બધું કરીને પ્રત્યક્ષપણે લાભ આપ્યો. હરિભક્તોએ ખૂબ લાભ લીધો ને ધન્ય ધન્ય થઈ ગયા. हाँ स्वामी, यह हमारा परम सौभाग्य है कि परब्रह्म भगवान स्वामीनारायण इस ब्रह्मांड में पधारे और भक्तों के साथ घुल मिल गए. इसीलिए वे वचनामृत में कहते हैं, ऐसे दृढ़ सत्संगी ही हमारे तो सगे संबंधी है और वही हमारी ज्ञाति है, तथा हमें इस देह से ऐसे भक्तों के साथ ही निवास करना है, ऐसा हमारा निश्चय है. अहो, भगवान की कैसी करुणा, भक्तों के साथ कैसा अलौकिक नाता. परंतु स्वामी, भगवान की इससे भी बड़ी कृपा ये हुई कि वे इस पृथ्वी पर प्रकट रहे और हमें प्रत्यक्ष मिले, संत के स्वरूप में, आपके रूप में. इसीलिए स्वामी, आज लाखों भक्तों को भगवान स्वामीनारायण के निस्वार्थ वात्सल्य का अनुभव हो रहा है. आपके द्वारा हम सभी भक्तों को जीवन यात्रा के हर कदम पर आपका साथ मिला है. पड़ पड़नो सतवारो आपनो महंत जी, के में करी ना भुलाए. पड़ पड़नो सतवारो आपनो महंत जी, के में करी ना भुलाए. जीवननी वाटમાં શ્રીજી સંગાથમાં, જીવનની વાટમાં શ્રીજી સંગાથમાં, આપના સ્વરૂપે સદાય, આપના સ્વરૂપે સદાય. પળ પળનો સતવારો આપનો महंतजी, के में करी ना भुलाए. मेरे बेटे कीर्तन के जन्म को जब 7 महीने का वक्त बाकी था, तब परम पूज्य महंत स्वामी महाराज का पत्र आया और वो पत्र 7 पन्नों का था और उस पत्र में
कीर्तन के अलावा और कोई विषय ही नहीं था। स्वामी बापा ने संबोधन किया और फिर तुरंत पहला ही वाक्य लिखा कि बाकी सारी बातों को साइड में रखकर हम लोग मुक्त की बात करते हैं। कीर्तन तब गर्भ में ही था और उसके स्वास्थ्य की चिंता बापा ने उसी समय कर ली थी। बापा ने खास 2 दवाइयों का सूचन किया। वे दवाइयां कैसे लेनी हैं, उनमें क्या क्या सावधानी बरतनी है, सब कुछ उन्होंने पत्र में विस्तार से समझाया। मैं तो ये सोचकर अचंभित रह गया कि बापा ने सिर्फ दवाइयों का नाम और उन्हें लेने के तरीके लिखे, इतना ही नहीं बल्कि मोरबी शहर में रहते हुए भी ये चिंता की कि ये दवाइयां अहमदाबाद में कहाँ मिलेंगी। तो स्वामी बापा ने अहमदाबाद की 3 प्रसिद्ध होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर्स के पूरे पते नाम के साथ एक कागज पर लिखकर मुझे इस पत्र में भेज दिया। मतलब एक ऐसा जीव जिसका अभी जन्म होना भी बाकी है, ऐसे समय पर उसके स्वास्थ्य की चिंता महंत स्वामी महाराज करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि समय समय पर बापा हमारी देखभाल करते हैं, पर ऐसा नहीं है, बल्कि बापा हमारी हर पल देखभाल करते हैं, हमारी हर एक क्षण की देखभाल करते हैं। ये अनुभूति हमें उस पत्र से हुई। स्वामी बापा, आपने तो हमारे जन्म से पहले ही हमारी चिंता की है। हम कितने भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम आपकी गोद में बड़े हुए हैं। हाँ स्वामी, हमें देखते ही आपका हृदय प्रेम से भर जाता है। आप हमें सामने से बुलाते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, हमारे साथ बातें करते हैं, हमें कहानियाँ सुनाते हैं, हमें लेटर्स लिखते हैं, हमारे लिए ड्राइंग्स भी बनाते हो। आप हम पर कितना सारा प्यार बरसाते हैं। बापा, आप तो हमारे साथ हमारे जैसे ही बन जाते हैं। डार्विन में स्वामी भोजन दर्शन दे रहे थे। उसी समय सभी बालक मुखपाठ प्रस्तुत कर रहे थे और तभी महंत स्वामी महाराज ने कहा, ये जो बालक स्वामी की बात बोल रहा है उसका निरूपण करो। और अचानक उसी क्षण मुझे वहां पर निरूपण करना पड़ा। तब मैं जो बालक स्वामी की बात बोलता और मैं तुरंत उसका अर्थ समझकर समझा देता। इस तरह मैंने 5-6 स्वामी की बातों का निरूपण किया। बापा राजी हुए और मुझे चॉकलेट का प्रसाद भी दिया। और उस वक्त देर शाम में जब स्वामी जी भोजन दर्शन दे रहे थे, तब महंत स्वामी महाराज सबको लड्डू का प्रसाद दे रहे थे। तब महंत स्वामी महाराज ने मुझे पूछा, तुझे कितने चाहिए? पता नहीं क्यों अचानक मेरे मन में विचार आया कि 7 कहूँ, तो फिर मैंने 7 मांग लिए। तो बापा ने 7 लड्डू रख दिए। मैं थाली लेकर नीचे बैठा। फिर तब बापा ने कहा कि सामने बैठकर खा। इस तरह बापा बहुत प्रसन्न हुए। और अचानक जब मैं बैठा हुआ था तो बापा अपनी कुर्सी से उठकर नीचे मेरे पास आए और बैठकर फोटो लिया। और इतना ही नहीं, बट जब अगले दिन बापा यहाँ से विदा लेने वाले थे, तब एक लड्डू लेकर नीचे बैठकर स्वयं उन्होंने खिलाया मुझे। बाद में जब बापा विश्राम कर रहे थे और तब फिर जब जागे, उन्होंने पूछा उसको कैसा लग रहा है? सब पच गया। फिर उन्होंने मुझे ऊपर बुलाया और फिर पेट पर हाथ फेरते हुए कहा कि सब पच जाएगा। और जब बापा का विदा होने का समय आया तो उन्होंने मुझे ऊपर बुलाकर स्पेशली राखी बांधी। तो बापा ने ऐसा कहा कि वंदन मन में बस गया है। बापा के हृदय में कितना अपार प्रेम था। मैं तो तब केवल 8 साल का बालक था, लेकिन आज तक वो प्रसंग मेरे मन में बसा हुआ है। और स्वामी, जैसे माँ अपने बालक का दुख सह नहीं सकती, वैसे ही हमें थोड़ी सी भी तकलीफ हो वो आपसे कैसे सहा जाए। बापा बोडेली मंदिर पधारे थे। उस समय हमारी भोजन दर्शन की बारी थी। मैं अपने साथ अपने छोटे बेटे हिरेन भाई को भी लेकर गया था। हम थोड़ी देर से पहुंचे थे। तब बच्चों को आगे बिठा दिया गया। उस समय मैंने जीन्स की पैंट पहन रखी थी और वो जीन्स बहुत टाइट थी, इसलिए मेरे घुटनों में दर्द हो रहा था। मुझे स्वयं भी ध्यान नहीं था कि जीन्स की पैंट पहन रखी है तो उसे बैठने में तकलीफ हो रही है। ये सब महंत स्वामी बापा देख रहे थे, इसलिए उन्होंने संतों से कहा कि बच्चे को बैठने के लिए कुर्सी लेके आओ। फिर मुझे संतों की कुर्सियों के बीच बिठा दिया गया। इसके बाद अंत में चॉकलेट बांटी गई और सबसे पहली चॉकलेट मेरे बेटे को मिली। उसे खुशी हुई। मैं चॉकलेट खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझसे रैपर नहीं खुल पाया। तब
बापा ने संतों को इशारा किया कि इसका रैपर खोल दो। रैपर खुलते ही मैं वही बैठे बैठे चॉकलेट खा गया। तो बापा ने ऐसी करुणा दृष्टि रखी, 100 माताओं जैसा स्नेह बापा ने इस बालक पर बरसाया। बापा, आपने हमारे शरीर के साथ साथ हमारे पढ़ाई की भी चिंता की है। हम पढ़ाई में आगे बढ़ पाए, इसके लिए आपने कितने सारे पत्र लिखे हैं। बापा, इतनी बड़ी संस्था के इतने बड़े बड़े कार्यों के बीच भी आप हम छोटे छोटे बालकों को कभी नहीं भूले। बापा, हमें आपका प्यार मिला, मतलब हमें साक्षात भगवान का प्यार मिला। यह स्मृतियाँ हम कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं। અક્ષરતમ આંગળી પકડીને માંડી છે યાત્રા જીવનની આજીવે। ઓ અક્ષરતમ આંગળી પકડીને માંડી છે યાત્રા જીવનની જીવે। ભણતરને ગણતરના પાઠો ભણાવ્યાને ખેલ્યા તવ ખોળે કદીએ। કાળજે કંડારી આપની સ્મૃતિઓ, કાળજે કંડારી આપની સ્મૃતિઓ। કાળથી કદી ના ભૂસાય, કાળથી કદી ના ભૂસાય। પળનો સતવારો આપનો મહંતજી, કેમે કરી ના स्वामी बापा, आपके अपार वात्सल्य का अनुभव हमने भी किया है। आप कहते हैं ना, जवानी तो बिना ब्रेक की गाड़ी है। जवानी यानी सपनों का आकाश और उसमें दौड़ते हुए महत्वाकांक्षा के घोड़े। परंतु तेज रफ्तार से दौड़ती जिंदगी को जब निष्फलता की ठोकर लगती है, तब आपका हाथ सदैव हमें संभालने के लिए तत्पर रहता है। जब हम हार गए, हम अकेले पड़ गए, हताशा निराशा की गहरी खाई में उतर गए, तब आपका प्यार और दुलार हमें बाहर खींच लाया है। आपके प्रेम और ममता ने हमें नया जीवन दिया है। जब मैं पिलानी गया था तो पहला सेमेस्टर पूरी तरह संघर्ष में ही निकल गया था, क्योंकि अंग्रेजी अच्छी नहीं आती थी, गुजराती माध्यम में पढ़ा था। लेकिन तीसरे सेमेस्टर में मैंने निश्चय किया कि अब कुछ करके दिखाना है। तो केवल महाराज स्वामी को राजी करने के लिए ही 7 के 7 विषयों में मुझे A ग्रेड आए, और इसलिए टोटली मेरा CGPA पूरी तरह 10 आउट ऑफ 10 हो, ऐसा मैंने सच्चे मन से निश्चय किया। अब पहले मिड टर्म में सभी विषयों में A ग्रेड मिले तो मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ गया कि फाइनल में भी जरूर आएंगे। इसलिए मैंने मेहनत भी डबल कर दी और प्रार्थना भी मैंने डबल कर दी थी। अब मेरी दृष्टि में फाइनल की सभी परीक्षाएं बहुत अच्छी गई थी, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मुझे 7 विषयों में A ग्रेड के साथ 10 आउट ऑफ 10 मिलेंगे। लेकिन जब मैं पिलानी पहुंचा, अपने कमरे का दरवाजा खोला और जैसे ही ग्रेड शीट हाथ में ली, आई वॉज शॉक्ड, रियली शॉक्ड।
क्योंकि सातों के 7 कोर्स में ए ग्रेड की जगह मुझे बी ग्रेड मिला, सातों में। मैं बहुत दुखी था, बहुत फ्रस्ट्रेटेड था और डिप्रेस था। और मन में तो ऐसी शिकायत थी कि महाराज स्वामी आप ये क्या कर रहे हो। और मेरे कमरे में महाराज और स्वामी के लगभग 50 फोटो लगे थे। मैंने गुस्से में वो सब फोटो खींच खींच के निकाल दिए। सब चिपके हुए थे, सब निकाल कर एक ढेर बना दिया। और मैं उसे फाड़ने ही वाला था, फाड़ कर फेंक देता मैं। सोचा कंठी भी उतार दूं और सोचा सब व्यर्थ है, सत्संग भी व्यर्थ है। इतना गुस्सा था मन में। लेकिन भगवान की कृपा कि मैंने फोटो फाड़े नहीं और रख दिए एक तरफ। और फिर चुपचाप सो गया मैं। और फिर दूसरे दिन सुबह उठा और सोचा आज पूजा वूजा कुछ नहीं करूंगा। फिर भी भगवान ने प्रेरणा दी तो नहाया और पूजा की। लेकिन पूजा में लगातार शिकायतें ही थी कि मुझे आप पर विश्वास ही नहीं। और मैं रो भी रहा था। फिर मैंने उसी अवस्था में महंत स्वामी महाराज को एक लंबा पत्र लिखा। महंत स्वामी महाराज का पत्र आया और उस पत्र में महंत स्वामी महाराज ने एक अद्भुत बात लिखी। स्वामी कहते हैं आपका पत्र पढ़कर आपको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। अब इसमें भला अभिनंदन कैसा? पूजा भी निराशा से कर रहा था और फोटो फाड़ने वाला था। लेकिन स्वामी लिखते हैं आपको बहुत अभिनंदन, शाबाश, गुड फाइट। परम पूज्य स्वामी बापा भी बैठे हैं ना, आपकी मां की तरह, जो वृत्ति के द्वारा ध्यान रखे वैसी मां। मतलब नाराजगी के बजाय निस्वार्थ प्रेम और केवल वात्सल्य कि आप नए नहीं हैं। इस जन्म में भी प्रसन्नता हुई है, इसीलिए आपने मूर्तियों पर दया की नहीं तो फाड़ देते। और फिर बापा कहते हैं जो अनुभव हुआ है उसे पकड़ कर रखिए। क्या पकड़ कर रखना है? 1, स्वामी बापा करता हरता है, उनकी इच्छा वही हमारा प्रारब्ध है, वे अति समर्थ हैं। 2, वे जो भी करते हैं हमारे भले के लिए है, जो तुरंत समझ में नहीं आता, बाद में समझ में आता है। 3, थोड़े में थोड़ी सी कीमत चुकाकर कितना बड़ा लाभ मिल गया। आपका निश्चय दृढ़ हो गया। हजारों CGPA से भी बढ़कर ऐसा काम हो गया है। कई जन्मों का हिसाब साफ हो गया। ये पत्र पढ़ने के बाद मुझे अचानक बहुत हल्कापन महसूस हुआ। एकदम आनंद से भर गया मन। लगा कि सचमुच कितनी बड़ी बात हो गई। फिर सेमेस्टर खत्म हुआ और मैं महंत स्वामी महाराज से मिलने गया। स्वामी को तो सब कुछ पता ही था क्योंकि बापा ने 8 पन्नों का पत्र लिखा था। और जैसे ही मुझे देखा स्वामी बोले आओ हमें बैठना है। फिर हम बापा के कमरे में बैठे, बापा यानी महंत स्वामी और मैं। और फिर स्वामी बोले वचनामृत लाओ और मध्य का 41वां वचनामृत पढ़ने को कहा। तुम कहते हो कि तुमने कार्ड बनाया था, पूजा में रखा था कि मुझे केवल महाराज स्वामी को, बापा को राजी करने के लिए ही ये 10 आउट ऑफ 10 CGPA प्राप्त करना है। स्वामी ने कहा अगर सच में राजी करने की भावना होती, 100% एकदम निष्काम भाव से राजी करने की भावना होती, तो जरा भी दुख नहीं होता, क्योंकि मेहनत तो तुमने की ही थी और स्वामी बापा राजी हुए ही हैं। लेकिन इसके साथ साथ तुम्हारे भीतर मान भी था कि अगर मुझे 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा तो पूरे कैंपस में 500 में से 1-2 लोग ही होंगे, उसमें से तू एक होगा। स्वामी बोले ये मान बाहर से नहीं दिखता, खुलकर पता नहीं चलता, लेकिन अंदर हमारे मन के भीतर, हमारी मानसिकता में वो हमें सेवा के लिए प्रेरित करता है, अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। फिर मध्य का 41वां वचनामृत पढ़वा कर बोले कि भगवान की भक्ति भी हमें ऐसी पसंद आती है जिससे हमें मान मिले। तो ये बात मुझे स्वामी बापा ने
1.5 घंटे तक ऐसे सामने बिठा कर समझाई और कोई घुमा फिरा कर नहीं, स्पष्ट कहा तुम स्वयं जिम्मेदार हो। और उस समय मुझे वो बात खास याद आई जो कि 21वें वचनामृत में महाराज कहते हैं कि सच्चा मित्र कौन? मित्र जिसे मेरे लिए अत्यंत प्रेम हो। तो सच्चा मित्र कौन? जो दुख देकर भी हित की बात कहे, वही सच्चा मित्र है। तो ऐसा महंत स्वामी महाराज का प्रेम का अनुभव मुझे हुआ और ऐसा अनुभव कई अवसरों पर हुआ है। सुबह महंत स्वामी महाराज अल्पाहार के बाद पूरे मंदिर का निरीक्षण कर रहे थे, सभी विभागों का। उस समय मेरे साथ पूज्य विवेक मूर्ति स्वामी भी थे। अचानक एक फोन आया कि नयन को तुरंत घर भेजो, इमरजेंसी है। तो मैं तो तुरंत जिस ग्रुप में था वहां से अलग होकर विवेक मूर्ति स्वामी से कहकर घर के लिए निकल पड़ा। जब मैं घर पे पहुंचा तब पता चला कि मेरी छोटी बेटी अत्यधिक पीयर प्रेशर में पिछले 1 साल से थी। उसी के प्रभाव में उसने कुछ गलत कदम उठा लिया जो हमें समझ में नहीं आया और उसे मेडिकल तौर पर अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। तो विवेक मूर्ति स्वामी ने महंत स्वामी को जानकारी दी कि ऐसी घटना हुई है और इसलिए नयन भाई तुरंत घर गए हैं। उनकी करुणा और दया देखिए, तुरंत उन्होंने विवेक मूर्ति स्वामी से कहा कि चलो मुझे नयन के घर जाना है, और तुरंत ही महंत स्वामी महाराज विवेक मूर्ति स्वामी के साथ घर पधारे। उनके आने से इतनी शांति मिली, इतनी उष्मा महसूस हुई जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन स्वामी जी को एक ही चिंता थी कि उस समय क्या हुआ ये बताइए। मैंने सारी बात बताई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, आशीर्वाद दिए, दृष्टि की और कहा कि जरा भी चिंता मत कीजिए, महाराज साथ है, सब अच्छा होगा, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहने के बाद जब वे मंदिर लौटने के लिए निकले तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं भी उन्हें मंदिर तक छोड़ने जाऊं। तो मैं गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठकर बातचीत के दौरान स्वामी ने मुझसे मेरी बड़ी बेटी के बारे में पूछा। तो मैंने कहा वो कॉलेज में अच्छी तरह से सेटल हो गई है, वहां के वातावरण में भी सेट हो गई है, वो सत्संग में भी, सभा में भी नियमित रहती है, उनका आने बहुत नियमित है, स्वामी एकादशी भी निर्जला करती है। इस तरह मैंने सारी बातें बताई। स्वामी ने सब शांति से सुना और बहुत राजी हुए। और जब मंदिर पहुंचे और गाड़ी से उतरते समय स्वामी ने मुझे फिर से आशीर्वाद दिए, छोटी बेटी के लिए चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। और बहुत प्रसन्न हुए बड़ी बेटी की बातें सुनकर। इसके बाद मैं वहां से विदा हुआ, लेकिन फिर वे मेरी छोटी बेटी को भी संदेश देना चाहते थे। फिर 6 पन्ने का लेटर राइटिंग पैड लेकर स्वामी ने खुद ने मेरी बेटी को लिखा। फिर बातचीत में बड़ी बेटी की बात दोबारा आई, उसे भी प्रेरणा मिले। इस भावना से स्वामी ने 2 पन्नों का एक और पत्र मेरी बड़ी बेटी के लिए लिखा। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार हमारी महिमा देखी, हरि भक्ति की महिमा देखी और जिस तरह एक किशोरी की महिमा देखी, वो मुझे भीतर तक छू गया कि इस तरह भी हमारे भीतर के गुणों को देखकर वे स्वयं हमें पत्र लिखते हैं। लेकिन वर्षों बाद जब मेरी नौकरी छूट गई और मैं आगे क्या करना है इसको लेकर असमंजस में थी, तब अचानक भीतर से प्रेरणा हुई कि गुरुजी ने पहले जो पत्र लिखे थे मेरे पापा के लिए, मैं उन सबको दोबारा पढूं। और उनमें से खासकर ये पत्र मैंने फिर से पढ़ा। तो उसमें उन्होंने एक बात लिखी थी कि वो जीवन के सभी कार्यों में अपार सफलता प्राप्त करें, आध्यात्मिक भी और सांसारिक भी। उस समय जब मैं पूरी तरह टूट गई थी, तब उस एक वाक्य से ही मुझे तुरंत शक्ति मिल गई कि स्वामी मेरे साथ हैं। आगे उन्होंने लिखा था, वी आर इन फैक्ट बॉर्न टू लिव एंड डाई फॉर प्रमुख स्वामी महाराज। आप, मेरे पापा संजय, आपके भाई, आपकी धर्मपत्नी और आपकी बेटी, आप एक श्रेष्ठ परिवार हैं। आप सभी मुझे बहुत प्रिय हैं, चाहे आप इसे जानते हो या नहीं। आप सभी के लिए लगातार चुपचाप प्रार्थना करता हूँ। लेकिन इन पंक्तियों से मुझे ये गहराई से महसूस हुआ कि वे हमारे लिए चुपचाप प्रार्थना करते रहते हैं। वे हमसे इतना प्रेम करते हैं जितना हमें पता भी नहीं चलता, और पहले से ही हमारी खुशी में और किसी भी चुनौती में वे हर पल हमारे साथ खड़े रहते हैं, कभी अपने पत्रों के माध्यम से, कभी फोन कॉल के द्वारा। और सच कहूँ, कई बार तो ऐसा लगता है कि हमने कोई प्रश्न पूछा भी नहीं होता और मानो उन्हें पहले से पता होता है क्या समस्याएं आएंगी, तो वे उत्तर पहले ही दे देते।
जब हम गोधरा गांव से भरूच गए तो वहां ऐसा हुआ कि वहां ज्यादा एक्सपोजर मिला। उसके कारण पढ़ाई में मन कम लगने लगा, इसलिए मैं 1-2 विषयों में डिटेन हो गया। हालांकि मैं स्वयं सेल्फ हेल्प और मोटिवेशन की किताबें पढ़ता रहता था, तो मेरे मन में यह था कि मैं ये बात माँ को ना बताऊं और मैं खुद ही इससे बाहर निकल जाऊंगा। मुझे पूरा भरोसा था। पर मैंने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया और मेरे मन में कहीं ना कहीं ये विचार चलने लगा कि मैं बिजनेस शुरू करूंगा, फिर बाद में वापस कॉलेज जाकर डिग्री पूरी कर लूंगा। सोचा अभी 1 साल और मेहनत कर लूंगा। और इसी बीच 2011 आ गया, यानी 2007 से 2011 तक लगभग 4 साल कॉलेज से मैं दूर रहा। तो 2011 में जैसे रवि सभा में जाते हैं वैसे हम बैठे थे और महंत स्वामी महाराज सभा में विराजमान थे। अचानक मेरी दृष्टि महंत स्वामी महाराज से मिली और एकदम से शौक लगा मुझे और ये विचार आया कि आगे क्या करना है अब मुझे। अंदर से आवाज आई कि अब मुझे कुछ करना ही होगा और सत्संग भी नया नया था, इसलिए ये समझ नहीं थी कि सीधे संतों से जाकर बात की जाए और समाधान लिया जाए। और भीतर मेरा अहंकार भी था कि अगर लोगों को पता चल गया कि इतनी उम्र हो गई और डिग्री पूरी नहीं की तो घर तक बात पहुंच जाएगी। मन में लगातार उथल पुथल थी, इस उलझन से बाहर कैसे निकलूं। तभी उसी समय मैंने तुरंत कागज और कलम उठाए और महंत स्वामी महाराज को मैंने पत्र लिखा। मैंने लिखा कि स्वामी, सबसे बड़ी भूल ये हुई है कि मैंने घर पर नहीं बताया कि पढ़ाई छोड़ दी है, कॉलेज छोड़ दिया है, इतने साल बीत गए हैं। पत्र के अंत में मैंने केवल 2 प्रश्न पूछे कि स्वामी, मैंने देखिए घर पर कोई बात नहीं की, ये जो मैंने झूठ बोला है इस चीज का मैं प्रायश्चित कर पाऊंगा या नहीं। फिर ये दूसरा प्रश्न पूछा था कि क्या मैं अब सही मायनों में अच्छी पढ़ाई कर पाऊंगा। तो घर पहुंचने के लगभग 1 सप्ताह बाद बापा का उत्तर आया और सच कहूं तो उस पत्र से मुझे अपार प्रेरणा मिली। बापा ने ये लिखा था। शुरुआत ही कुछ इसी तरह की। प्रमुख स्वामी महाराज के लाडले संतान, उन्होंने लिखा कि मुझे बहुत आनंद हुआ, क्योंकि आनंद इस बात का है कि आपने अंततः यह निश्चय कर लिया है कि 10वीं के आधार पर डिप्लोमा तो करना ही है। तो यह पत्र की शुरुआत थी। फिर उन्होंने लिखा कि जब निश्चय कर लिया है तो सफलता जरूर मिलेगी। फिर अंदर एक वाक्य लिखा था उन्होंने, ठान लो तो हो सकता है, हमें धारण शक्ति की आवश्यकता है। मेरे प्रश्नों में से पहला उत्तर उन्होंने ये दिया कि जब तुम डिप्लोमा पूरा कर लोगे तो वही तुम्हारा प्रायश्चित बन जाएगा। ये शब्द उन्होंने लिखे थे, तो मुझे बहुत शांति मिली थी। फिर उन्होंने नीचे ये भी लिखा कि कब तक छुप छुप कर जियोगे तुम, ये बात घर पे कहने के लिए कही। और उसमें एक वाक्य अंडरलाइन किया था कि अपना जीवन बनाओ, लोगों को मत बनाओ। ये बात विशेष रूप से लिखी थी। और अंत में उन्होंने लिखा था कि पढ़ाई को प्रमुख स्वामी महाराज व्यक्तिगत सेवा मानते हैं, इसलिए प्रमुख स्वामी महाराज को राजी करते करते सर्वोत्तम पढ़ाई स्वतः ही हो जाएगी। मतलब दोनों प्रश्नों के उत्तर उन्होंने इस तरह दिए कि मुझे क्या करना है उसका स्पष्ट मार्गदर्शन दिया। उनके आशीर्वाद के प्रताप से कॉलेज भी अच्छी मिली और ऐसी स्कॉलरशिप मिली कि यदि सेमेस्टर में आप 9 अप CGPA लाओ तो आपकी पूरी फीस माफ। मतलब उसमें कई सेमेस्टर्स में तो ऐसा भी हुआ कि मैं टॉपर रहा, 9.9 CGPA लाया, मतलब मुझे 1 भी रुपया फीस नहीं भरनी पड़ी। सब कुछ बहुत अच्छे से पूरा हुआ और मैं अत्यंत आनंद में था। और इस समय के दरमियान एक चीज थी कि महंत स्वामी महाराज मुझे सपनों में भी दिखाई देते थे। विश्वास रखो, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हर पल मुझे यह एहसास होता था कि बापा मेरे साथ ही है। मतलब आज भी मुझे ये अनुभूति होती है कि बापा ने मुझे संभाला है और मेरी बहुत रक्षा की है और महंत स्वामी महाराज हर पल मेरे साथ ही हैं। 1995 में मेरे पिताजी को लुकेमिया की बीमारी का पता चला, यानी बोन मैरो कैंसर। 10 अक्टूबर के दिन मेरे पिताजी धाम में चले गए। मन में यही विचार आने लगा कि अब पिताजी नहीं रहे तो मेरा कौन देखभाल करेगा। ऐसी चिंताएं बढ़ने लगी और रात को नींद भी नहीं आती थी। मन में तनाव था। उस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
कि अब मैं क्या करूं। तभी मन में विचार आया कि पत्र लिखूं महंत स्वामी महाराज को, क्योंकि जीवन में आगे क्या करना है इसकी कोई दिशा दिखाई नहीं दे रही थी। लगातार चिंता रहती थी, नकारात्मक विचार आते थे और कोई लक्ष्य भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था। तो आप मुझे योग्य मार्गदर्शन दें। इस भाव से मैंने स्वामी जी को पत्र लिखा और मुझे लगता है कि एक ही सप्ताह के भीतर स्वामी जी का पत्र मुझे मिला। स्वामी श्री ने 11 जून 1996 को सिलवास से मुझे पत्र लिखा। विशेष आपका पत्र मिला। भावेश, हम सब साथ हैं। स्वामी बापा हैं, संत गण हैं, सब आपके अपने हैं, इसलिए हिम्मत रखो। सुख दुख तो आते रहते हैं। कंप्यूटर और कीबोर्ड की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। सब ठीक होगा, सारे दुख दूर हो जाएंगे। कमजोर मत पड़ना, दुख को गिनना नहीं, हिम्मत रखना। स्वामी बापा से अंतर मन से प्रार्थना करना, राजी रहना। बस यही आपके साधु केशव जीवन दास के प्रेम सहित जय स्वामी नारायण। इस प्रकार बापा ने मुझे पत्र लिखा। मैंने एक बार पढ़ा, फिर दूसरी बार पढ़ा। जैसे जैसे पढ़ता गया वैसे ही मेरे मन के विचार शांत होते गए। मेरी सारी चिंताएं दूर होने लगीं और मुझे जीवन की एक सच्ची दिशा मिल गई कि अब आगे मुझे क्या करना है। यह सब मुझे स्पष्ट होने लगा। अंत में स्वामी बापा ने यह भी लिखा कि आपका केशव जीवनदास। बस इसी ऋण आपनो ना चुकवाए, इसी एक पंक्ति ने स्वामी जी ने मेरा हृदय जीत लिया। स्वामी, आप हमारी भावना और संवेदनाओं को समझते हो। आप जानते हो ये समय बहुत संवेदनशील है। प्रेम के बंधनों में जुड़ने में तो देर नहीं लगती, पर ये स्नेह संबंध जब टूटते हैं तब हमारा हृदय चूर चूर हो जाता है। इस टूटे हुए दिल को वापस संभालने के लिए आप हमेशा हमारे साथ रहे हो। सत्संग में मेरा एक बहुत करीबी मित्र है। वो एक बहुत ही अच्छी कॉलेज में पढ़ रहा था और उसी कॉलेज में पढ़ने वाली एक युवती के प्रति उसके मन में बहुत प्रेम और आकर्षण था और वो युवती भी मेरे मित्र से बहुत स्नेह, प्रेम और आदर सम्मान से बात करती थी। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि उस युवती को शायद किसी और युवक से प्रेम हो गया। इस कारण हमारे उस सत्संगी युवक जो मेरे मित्र थे उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने फिर महंत स्वामी महाराज को उस वक्त एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने पूरे खुले मन से, कपट भाव से अपनी सारी बात लिख दी। तो महंत स्वामी महाराज ने उसे 20 पन्नों का पत्र लिखा। उस पत्र में बापा ने इतने प्रेम से, वात्सल्य से, जैसे अपने ही बच्चे को स्नेहपूर्वक मार्गदर्शन देते हो उस प्रकार समझाया। स्वामी लिखते हैं, रूप यौवन कितना टिकेगा, लॉन्ग टर्म का सोचो। उसके बाद बापा ने कहा, उसने तुम्हें अस्वीकार कर दिया और किसी दूसरे युवक के साथ अपने प्रेम को स्वीकार किया, इससे तुम्हें दुख हुआ, लेकिन तुम सोचो तो सही कि तुम कौन हो। बापा ने उस युवक का आत्मगौरव और आत्मसम्मान पूरी तरह जागृत किया। स्वामी कहते हैं, तुम उसकी गुलामी क्यों कर रहे हो कि उसने मुझे ठुकरा दिया। स्वामी आगे कहते हैं, अपना गौरव रखो, तुम भी रॉयल हो। तुम्हारा कुल, परिवार सब देखो, क्या उसमें कुछ कमी है? ऊपर से प्रमुख स्वामी महाराज जैसे गुरु मिले हैं। हमें अपनी ही प्राप्तियों का मूल्य नहीं, अपने आप को नीचा मत मानो।
या बचकाना या प्रेम में हार गया हुआ ना मानो। इस हार जीत का कोई मूल्य नहीं है। परम पूज्य स्वामी जैसे महापुरुष को पाकर भी उनकी प्रसन्नता ना मिले, वो हार है। स्वामी कहते हैं 80% दुख तो चला ही गया है, बाकी 20% इस पत्र को बार बार पढ़ने से दूर हो जाएगा। और फिर स्वामी बापा ने एक पूरा टेबल बनाकर समझाया। तो स्वामी ने कहा उस महिला को 70 अंक, उस युवक को 70 अंक, लेकिन तुम्हें 85% मिले हैं। तुम्हें अपना ही पता नहीं है, इसलिए हिम्मत रखो और लाचारी दूर करो। स्वामी अंत में लिखते हैं कि अब ये पत्र यहां पूरा हुआ है। यदि कहीं लिंक में क्षति रह गई हो तो क्षमा करना, क्योंकि 8 बैठक में पत्र पूरा हुआ है। प्रार्थना भी तुम्हारे लिए की है। राजी रहना, स्नेह भाव रखना। यदि अधिक लिखा गया हो तो कृपया क्षमा करना। देखा, बापा ने यहां माफी भी मांगी। इस पत्र के मिलने के बाद उस युवक में अद्भुत साहस आ गया। उस महिला के विचार उसके मन से पूरी तरह निकल गए और फिर से मन लगाकर अभ्यास में पूरी तरह जुट गए। उसका आत्मगौरव, प्राप्ति का गौरव, बापा के प्रति प्रेम भाव, महंत स्वामी जी के प्रति प्रेम भाव और अधिक बढ़ गया। और आज वो बहुत अच्छी पढ़ाई करके जीवन में बहुत ही अच्छी पोजीशन पर है और अभी उसका वैवाहिक जीवन भी हर दृष्टि से सुखी है। अहो, अखंड ब्राह्मी स्थिति में लीन रहने वाले आप हमें इस माया की गंदगी में से निकालने के लिए किस हद तक नीचे आए हो। स्वामी, यही तो है आपके प्रेम की पराकाष्ठा। आपने हमें जैसा है वैसा स्वीकारा है, कोई अपेक्षा बिना, कोई उपेक्षा बिना। जैसे संतानों का उज्जवल भविष्य देखने के लिए माता पिता की आंखें तरसती है, वैसे आपका हृदय हमेशा चाहता रहा है हमारी सुख और शांति से भरी सलामत जिंदगी को। और इसलिए नौकरी व्यवसाय हो या फिर संसार व्यवहार, जीवन के प्रत्येक पहलू में आप एक सारथी बनकर हमारे जीवन रथ को आगे बढ़ाते रहे हो। सन 1989 में परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज की 69वीं जन्म जयंती भरूच में मनाई जानी थी। उस समय हम महंत स्वामी महाराज के साथ लैंडस्केप सेवा कर रहे थे। वे स्वयं हमें डिजाइन बनाकर देते थे, उसी के अनुसार हम कार्य करते थे। धीरे धीरे एक अत्यंत सुंदर लैंडस्केप तैयार हो गया। बापा की जन्म जयंती का 1 दिवसीय समारोह अत्यंत भव्य और बहुत सफल रहा। उसके बाद मैंने महंत स्वामी महाराज से निवेदन किया, स्वामी, अभी जो नौकरी मैं कर रहा हूँ, मेरी ये नौकरी टेम्परेरी नौकरी है। ये नौकरी किसी भी समय छूट सकती है। मेरे पास परमानेंट नौकरी नहीं है। कृपया ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मुझे एक परमानेंट और अच्छी नौकरी मिल जाए। महंत स्वामी जी ने प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद दिया कि अभी तुमने बापा की जन्म जयंती के अवसर पर जो लैंडस्केप सेवा की है, उससे स्वामी जी बहुत प्रसन्न है और मन से तुम्हें आशीर्वाद है कि कुछ ही समय में तुम्हें एक अच्छी और परमानेंट नौकरी मिल जाएगी। इसी समय के दौरान रिलायंस हजीरा की ओर से एक विज्ञापन निकला। उन्हें तो हॉर्टिकल्चर विशेषज्ञ चाहिए थे। इस विज्ञापन को पढ़ने के बाद उसके अनुसार मैंने आवेदन किया। कुछ ही समय के बाद मुझे इंटरव्यू का कॉल लेटर आया। मैंने इंटरव्यू दिया और सच कहूं तो मेरा वो इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। उसी दौरान फिर से महंत स्वामी महाराज किसी सेवा प्रसंग से विचरण के लिए फिर भरूच पधारे। तब महंत स्वामी जी से मैंने कहा, स्वामी, आपने बापा की जन्म जयंती के समय जो आशीर्वाद मुझे दिया था कि आपको खूब अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तो रिलायंस में से विज्ञापन निकला। मैंने अप्लाई किया, इंटरव्यू फेस किया, लेकिन अभी तक सिलेक्शन का कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। महंत स्वामी जी ने तुरंत कहा, रिलायंस में तुम्हारा सिलेक्शन हो ही गया है। रिलायंस वाले खुद गाड़ी लेकर तुम्हें लेने के लिए आएंगे और उसी गाड़ी में बैठाकर तुम्हें नौकरी के लिए ले जाएंगे। यह सुनकर मुझे थोड़ी हंसी आ गई। मन में हुआ कि ऐसा भी कभी होता है कि कंपनी खुद लेने के लिए आए, लेकिन बाद में वास्तव में वही हुआ। जीएनएफसी में उस समय कनक त्रिवेदी साहब जनरल मैनेजर थे। पिछले काफी समय से वो इसी पद पर काम कर रहे थे। बाद में रिलायंस ने उन्हें एक अच्छी पोस्ट पर प्रमोट किया और उन्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त किया। उसी दौरान किसी काम के सिलसिले में उन्हें भरूच से हजीरा जाना था
तो रास्ते में उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि हमारा वो जो कपूरिया है ना, जो हमारे बगीचे से गुलाब निकाल कर बाड़ी में बोता था, उस कपूरिया से कहो कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स लेकर हमारे साथ ही गाड़ी में हजीरा चले, मतलब हमारे साथ बैठकर हमारी गाड़ी में ही चले। तो ड्राइवर मुझे ढूंढते ढूंढते आया और कहा कि साहब का मैसेज है कि आप अपने सारे सर्टिफिकेट्स लेकर मेरे साथ चलें, आपको हमारी गाड़ी में ही बैठकर हजीरा रिलायंस चलना है। मैं तुरंत तैयार होकर उनकी गाड़ी में बैठ गया और अगले ही दिन उनके ऑफिस पहुंचा और साहब के कहने पर मुझे वहीं अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया। तब मुझे स्पष्ट अनुभव हुआ कि महंत स्वामी महाराज ने जो कहा था कि रिलायंस वाले खुद मुझे लेने आएंगे, तो जैसा महंत स्वामी महाराज ने कहा था ठीक उसी तरह से मेरे साथ हुआ। इसके बाद मैंने पूरे प्रसंग का विवरण महंत स्वामी महाराज को लिखा। जवाब में स्वामी जी ने मुझे एक पत्र लिखा। आपका पत्र मिला, पढ़ा, पढ़कर बहुत आनंद हुआ। तो दिलीप भाई, अब स्वयं को सामान्य मत समझना, अपनी शक्ति को बाहर लाना, ऑफिस में नियमित रहना, विनम्र बने रहना, अपने से नीचे के लोगों और ऊपर के सभी के साथ प्रेम से रहना और आनंद से काम करना। काम के लिए किसी को भी कुछ कहना ना पड़े, आलस्य मत करना, कठोर परिश्रम करोगे तो और भी श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। अपने क्षेत्र का ज्ञान बढ़ाते रहना और अप टू डेट रहना, नए नए विचार करना और कार्य करना, तो तुम्हारे सेठ और सभी लोग खुश रहेंगे। स्वभाव अच्छा रखोगे तो जय जयकार हो जाएगी। जैसे एक पिता अपने पुत्र को उसकी भलाई के लिए समझाता है कि किस तरह नौकरी करनी है, क्या क्या ध्यान रखना है, ऐसा ही एक पत्र महंत स्वामी महाराज ने मेरे लिए स्वयं लिख कर दिया। महंत स्वामी महाराज ने मुझे लगभग 60 पत्र लिखे, जिनमें विभिन्न प्रकार का मार्गदर्शन मिलता था। अफ्रीका के झिंजा से उन्होंने लगभग 12 पन्नों का एक पत्र लिखा, जिसमें विवाह के संदर्भ में मार्गदर्शन था। लव कैन कॉन्कर ऑल थिंग्स, लेट अस टू गिव इनटू लव। बापा कहते हैं तुम्हें केवल प्रेम देना है, दूसरा व्यक्ति प्रेम दे या ना दे ये नहीं देखना, उसके दोष भी मत देखना, क्योंकि दोष देखने से प्रेम नहीं दिया जा सकता। बापा ने यह भी लिखा है कि डोंट मेजर इन माइनर थिंग्स, छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं चाहिए। टू फॉरगिव इज द हाईएस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल फॉर्म ऑफ लव। इन रिटर्न यू विल रिसीव अनटोल्ड पीस एंड हैप्पीनेस। कि दैनिक जीवन के 90% तनाव और टकराव केवल आवाज के गलत स्वर के कारण होते हैं। तब बापा ने समझाया कि जब भी अपनी पत्नी से बात करो तो इन सभी बातों का ध्यान अवश्य रखना। बापा आगे लिखते हैं कि यदि किसी को कुछ कहना हो तो पहले उसके 5 गुणों को मन में सोच कर कहना, कठोर शब्दों में नहीं। ये वर्ल्ड मैनेजमेंट का एक बड़ा सिद्धांत है। और इस प्रकार बापा ने मुझे विवाह के संदर्भ में मार्गदर्शन दिया। इसके बाद मेरा विवाह हुआ। विवाह के समय महंत स्वामी महाराज का मुझे अमेरिका से फिर एक पत्र आया, जिसमें बापा ने मुझे लिखा था कि आपके विवाह में उपस्थित ना रह पाने के लिए कृपया आप हमें क्षमा करना। 2014 में महंत स्वामी महाराज मुंबई में विराजमान थे। उस समय एक अंतिम पत्र मैंने महंत स्वामी महाराज को लिखा, और जो अंतिम पत्र मैंने उन्हें लिखा था उसका बापा की ओर से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन मुझे भली भांति पता था कि उस समय प्रमुख स्वामी महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और अब समस्त दायित्व महंत स्वामी महाराज के कंधों पर आ चुका था, इसलिए बापा व्यस्त होंगे। मेरे मन में फिर कोई अपेक्षा भी नहीं रही। और तभी आश्चर्य के बीच 9 जनवरी 2022 रात को ठीक 8:30 बजे मुझे नैनपुर से महंत स्वामी महाराज का फोन आया। महंत स्वामी महाराज ने मुझसे कहा कि विराज, तुम्हारा एक पत्र 2014 से मेरे पास रखा हुआ है और उस पत्र में तुमने सारी बातें जो विस्तार में लिखी थी, वो पत्र मेरे मन में था। रोज ऐसा लगता था कि मुझे उसका उत्तर देना है,
लेकिन मैं उसका उत्तर नहीं दे सका। और जब बापा ने ये शब्द कहे तो मेरी आंखें भर आई और मेरे मन में यही भाव आया कि बापा इतने व्यस्त होकर भी और आज गुरु पद पर विराजमान होने के बावजूद बापा स्वयं हमसे क्षमा मांग रहे हैं। ऐसे पुरुष हमें मिलना दुर्लभ है। एक दिन पापा को फोन आया सेवक संत का कि स्वामी आपको बोचासन बुला रहे हैं। तो पिताजी बोचासन गए। स्वामी ने पापा से कहा मैंने शिवांग के लिए एक कन्या देखी है। तो पापा बोले वो अभी तो साधु बनने का संकल्प लेके बैठा है और आप कन्या दिखा रहे। पापा ने कहा मैं उसे बुला लूं? तो कहा बुला लो। उसके बाद मुझे अंदर बुलाया गया। तो फिर पापा ने मुझसे कहा आप दोनों बैठो, मैं बाहर बैठता हूं। स्वामी ने कहा हमने कन्या तय कर दी है। मैंने कहा स्वामी लेकिन मुझे तो साधु बनना है। उन्होंने कहा नहीं गृहस्थ। हर बार उसी प्रेम से उसी शांति से स्वामी के वही उत्तर कि यही करना है, उसमें दूसरा कोई विचार मत करना। मैंने 3 से 4 बार पूछा होगा। अंत में मैंने कहा ठीक है स्वामी जैसा आप कहे, लेकिन मेरे लिए बहुत कठिन होगा। उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब महंत स्वामी महाराज ने मेरे पापा को फोन किया तो कहा हमने इस प्रकार से देखा है, यदि आपको और परिवार को अनुकूल लगे तो देखिए। पापा ने कहा हाँ स्वामी जैसा आप आज्ञा करें। तब महंत स्वामी ने कहा ऐसा नहीं, पहले आप अपनी बेटी से पूछिए। स्वामी हमेशा यही जानना चाहते थे कि बेटी की इच्छा क्या है। फिर जब ये सब चल रहा था और मैं बार बार स्वामी से कहता रहा कि स्वामी मुझे विवाह नहीं करना है, मुझे विवाह नहीं करना है, तब एक बार स्वामी ने कहा था कि महाराज ने जैसे दादा खाचर का विवाह करवाया था वैसे ही मैं तेरा विवाह करवाऊंगा, लेकिन तू ये विवाह कर। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब विवाह की बात आई कि विवाह कहाँ करना है, कैसे करना है, क्या क्या करना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे अतिथि होते हैं, सबको संभालना पड़ता है, तो विवाह या तो पुणे या मुंबई में होता है। लेकिन हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि महंत स्वामी जी क्या तारीख और स्थान बताएंगे। तभी महंत स्वामी ने स्वयं फोन हाथ में लिया और कहा, वो बोले हाँ संदीप भाई जय स्वामीनारायण, साक्षात स्थान सारंगपुर है, ये बापा का साक्षात स्थान है, महाराज यहाँ विराजमान है, प्रमुख स्वामी महाराज है, शास्त्री जी महाराज है, इससे श्रेष्ठ स्थान हो ही नहीं सकता, जय स्वामीनारायण। उसी समय गोंडल में 60 शताब्दी महोत्सव होने वाला था। तो फिर हमने पूछा तो उन्होंने हमें ऐसा कहा कि स्वामी केवल विवाह में आएंगे, आशीर्वाद देंगे और उसके बाद आप अपनी विधि अपने अनुसार कर लेना। स्वामी तुरंत निकल जाएंगे, आएंगे और गोंडल के लिए रवाना हो जाएंगे। तब 60 शताब्दी महोत्सव चल रहा था। मेरे पिताजी को संतों का फोन आया कि आप स्वामी को समझाइए, आप स्वामी को कहें हमें कोई आपत्ति नहीं यदि स्वामी विवाह में ना आ पाए। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि इस विषय में हमने कोई आग्रह नहीं किया, स्वामी आए तो सिर्फ शिवांग के कारण आए, क्योंकि स्वामी ने शिवांग को वचन दिया था। फिर पता चला कि स्वामी कुछ समय पहले ही पधारने वाले हैं, रात्रि भोजन वही रखा जाएगा। तो सारंगपुर में कीर्तन आराधना थी और उस कीर्तन आराधना में स्वामी पधारने वाले थे, इसलिए स्वामी के आगमन की तैयारी करो। जैसे जैसे दिन नजदीक आते गए वैसे वैसे स्वामी एक एक कर प्रसंग को बढ़ाते गए। उसके बाद विवाह का दिन आया। स्वामी ने पहले ही कहा था जैसे महाराज ने दादा खाचर का विवाह कराया था वैसे मुझे तेरा विवाह करवाना है। बारात अभी स्कूल के गेट तक पहुंची थी कि अचानक फोन आया, बारात को रोक दीजिए, स्वामी को बारात में शामिल होना है। इसीलिए हम सब मुख्य द्वार पर ही रुक गए और स्वामी की गोल्फ कार वहां आ पहुंची। सब अस्त व्यस्त था क्योंकि किसी को कल्पना नहीं थी, कोई तैयारी भी नहीं थी और भीड़ बेकाबू थी। उस गोल्फ कार में स्वामी, स्वामी के सेवक संत और मैं। फिर अब तो स्वामी बारात में शामिल हो गए थे। स्वामी भोजन के बाद कीर्तन आराधना में पधारे, सुबह पूजा दर्शन में आए, दोपहर में उन्होंने मुझे जनेऊ पहनाया और शाम को विवाह मंडप में भी पधारे। इस तरह उन्होंने जो वचन दिया था वो हर हाल में उन्होंने पूरा किया। फिर काफी समय बाद पता चला कि स्वामी जब मंडप में आए थे उस समय उनके नियमित वॉकिंग के बाद उनका क्रम था कि वे बाथरूम जाते थे। वो स्वामी जी का रूटीन था शाम का। उसके बाद मुझे मुनि चिंतन स्वामी ने कई समय बाद बताया कि वॉकिंग के बाद स्वामी बाथरूम नहीं गए थे। उन्होंने कहा कि विधि का समय है, हमें उसे संभालना तो पड़ेगा ना, इसीलिए उन्होंने कहा चलो। सेवकों ने कहा कि स्वामी 5-10 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्वामी बोले नहीं, थोड़ी देर से जाना उचित नहीं होगा। स्वामी आए, वहां बैठकर उन्होंने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा कि मैं कैसा दिख रहा हूं।
सच तो यह है कि मुझे उनके सामने देखना चाहिए। तब मैं कहीं और देख रहा था और वे मेरी ओर देख रहे थे। पूरी विधि संपन्न हुई, रात का भोजन हुआ और फिर हमसे एक भूल हो गई कि स्वामी जब भोजन के बाद प्रस्थान कर रहे थे तब हम में से कोई उन्हें विदा करने नहीं गए। उन्होंने अपने पूरे कार्यक्रम को बदल दिया था। 60 शताब्दी का अपना पूरा प्रोग्राम बदलना पड़ा होगा, उनका स्वयं का रूटीन बदलना पड़ा होगा। वे स्पेशली आए और हम में से किसी को याद भी नहीं आया कि हमें उन्हें मिलने जाना चाहिए, उन्हें सी ऑफ करने जाना चाहिए था। वे आए, अपना कर्तव्य निभाया और चले गए। मतलब उनका अपना जो प्रसंग था उसे एक ओर रखकर सिर्फ एक वचन निभाने के लिए सब कुछ बदल देना, यह बात मुझे इतनी छू गई कि ऐसे उपकार के लिए उनका आभार कैसे व्यक्त किया जाए ये मुझे पता ही नहीं है। यौवननी पाखो निश्रद्धानी आखो दई भक्ति नाभमा उडाड्या। यौवननी पाखो निश्रद्धानी आखो दई भक्ति नाभमा उडाड्या। संबंधो वंशाके संजोगे कचड़ा आपनो ज सदियारो पाम्या। जीव तरना रथ केरी लईने लगाम थया। जीव तरना रथ केरी लईने लगाम थया। केशव अम सारथी कृपा केशव अम सारथी कृपाए। पढ़नो सतवारो आपनो महंत जी तेने करी ना भुलाए। संसार में जो प्रेम दिखाई देता है और आप हरिभक्तों के प्रति जो स्नेह और अपनापन रखते हैं वो किस प्रकार का है? हमें तो कोई स्वार्थ કોઈ કાંઈ પામવું છે જ નહીં એવી રીતે વર્તે અને 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 ભગવાન આપવા ભગવાન સંબંધ સાથે સંબંધ થાય વધુ ને વધુ સંબંધ થાય એ રીતે આપણે આયોજન કરીએ છીએ. આપણે વળતરની વાત નથી, આપણે નિસ્વાર્થ, કોઈ સ્વાર્થ નહીં, કેવળ એમને ભગવાન બાજુ ચઢાવો એટલો જ સ્વાર્થ. हाँ स्वामी, आपका प्रेम निस्वार्थ है. आप हम सबके हैं और हम सब आपके हैं. पिछले कितने दशकों से हम आपकी वात्सल्य गंगा में परिप्लावित हो रहे हैं. हाँ स्वामी, यह बात सच है कि हमारे लिए तो आप एक हो, लेकिन आपके लिए हमारे जैसे लाखों हैं. एक एक व्यक्ति के मन हृदय को संभालने के लिए आपने अपना पूरा अस्तित्व समर्पित कर दिया है. स्वामी बापा, आज 92 वर्ष की आयु में भी आपके अनंत वात्सल्य का सागर उमड़ रहा है और हम सब उसमें सराबोर होकर जीवन की धन्यता का अनुभव कर रहे हैं. हाँ स्वामी, जीवन की धन्यता का अनुभव कर रहे हैं. हमारे परिवार के बड़े भाई पीनल भाई जब धाम में गए तब उनके बेटे की पढ़ाई के लिए उन्हें किस शहर की ओर जाना, उनके छोटे बेटे की पढ़ाई के लिए क्या करना, मेरी भाभी को नौकरी करनी चाहिए या फिर उन्हें नहीं करनी चाहिए, उन्हें घर में रहना चाहिए या फिर अपार्टमेंट में, ये सारी चिंताएं पूज्य महंत स्वामी महाराज ने की. और जैसे ही मुझे देखा तो स्वामी ने तुरंत ही, अभी तो कोई कुछ बोले, मैं कुछ सोचूं या बोलूं, उसके पहले ही स्वामी ने अपनी आंख के ओर संकेत करते हुए पूछा कि आंखें कैसी है. मैंने अपना सिर आशीर्वाद के लिए स्वामी की गोद में रख दिया. सिर रखने के बाद भी बापा ने अपने हाथ मेरे सिर से हटाए नहीं. कई मिनटों तक वैसे ही रखे रहे. मेरे मन में ऐसा भाव आया कि ऐसा सुख जीवन में कब मिलता है.
तभी वहां उपस्थित उत्तम योगी स्वामी ने श्रुति प्रिय स्वामी से पूछा, बापा डॉक्टर का इतने समय तक सिर क्यों पकड़े हुए हैं? तब बापा बोले, मैं इसके बाल ठीक कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी में आए हैं ना, इसलिए इनके बाल बिखर गए हैं और बापा ने मेरे बाल बहुत प्रेम से ठीक किए। मेरे पिताजी धाम में पधारे, उसके बाद जब स्वामी ने मुझसे फोन पर बात की तब उनके सबसे पहले शब्द ये थे कि मैं बैठा हूं ना, तो तुम चिंता क्यों करते हो? મારે એવો ભાવ હતો કે બાપા મારે નજીકથી નારાશ્વરી બતાવી તો શેઠ તો ઘેરથી એવો સંકલ્પ હતો તો નજીક આવું બોલાવીને બાપાને હોરમાં હાથ મેલીને મારા બાપે મટોરો બતાવ્યો હતો। मैं खड़ा था लिफ्ट के बाहर दर्शन के लिए, एकदम उन्होंने मुझे हक कर लिया। वो एक हक के बाद 10 दिन तक मैं बोल रहा हूँ, 10 दिन तक तो मैं ऐसे मतलब बॉल की तरह उछलता था, इतना हल्का हो जाता था। तो बापा ने स्वयं कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पूरी जांच करवाई और उसके साथ हमारे नियम धर्म सुरक्षित रहे। ऐसी भोजन व्यवस्था कहाँ मिलेगी जिसमें प्याज लहसुन ना हो, रहने की क्या व्यवस्था होगी, वहाँ फिलीपींस में कौन लेने आएगा, सब कुछ कैसे मैनेज होगा, यह सब स्वामी श्री ने ही जांच करवाई और तय किया। महंत स्वामी महाराज ने मुझे जीवन भर में 100 से भी अधिक पत्र लिखे हैं। પછી રૂમ में दूर उभो तो बापा के नजीक आम तो दूर कर उभो से। 12 वर्ष का था तब से लेकर आज 48 वर्ष का हो गया हूँ, तब भी बापा ने आज तक मित्रता निभाई है। आज भी कई बार ऐसा होता है कि मुंबई से कोई मिलने के लिए अगर बापा के पास आते हैं तो बापा उनसे कहते हैं कि मेरा एक मित्र मुंबई में रहता है और मुझे याद करता है। अब जीवन में इससे अधिक और क्या चाहिए? ऐसे तो लाखों भक्त भाविक परम पूज्य स्वामी श्री के पारलौकिक प्रेम और निस्वार्थ स्नेह के साक्षी बने हैं। जब महंत स्वामी महाराज के जीवन चरित्र के आलेखन का श्री गणेश हुआ तब सभी लोगों के पास से उनके प्रसंग मंगवाए गए थे। उस वक्त मानो स्वामी जी ने लिखे हुए पत्रों और उनके प्रसंगों का एक प्रवाह बह छूटा था। और जब यह सब देखा तब सभी को अनुभव हुआ कि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने सतत विचरण में भी रात दिवस एक करके सभी लोगों को निस्वार्थ प्रेम दिया है, पत्र लिखे हैं। उनके कारण, उनके प्रेम के कारण आज छोटे बड़े, बालक बुजुर्ग, सत्संगी बिन सत्संगी, पुरुष महिला सभी के जीवन में, संसार व्यवहार में, कारकिर्दगी में, परिवार में सुख शांति आ बसी है। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज सचमुच में हमारे लिए जिए हैं और आज भी जी रहे हैं। स्वयं भगवान के स्वरूप होने के बावजूद भी उन्होंने हमारे जीवन में इतना रस लिया है, उन्होंने ऐसा प्रेम हमें दिया है, उनके ऋण को चुकाने की बात तो दूर रही, उनके ऋण का स्मरण करते करते जीवन में पूर्ण कामपणा, कृत्यता का अनुभव करते हुए हम सब उनको प्रसन्न कर सके, यही उनके चरणों में प्रार्थना। ओ क्या आप अक्षर, क्या जीव हमें पामर, पण अपना व्याम दे छताए। क्या आप अक्षर, क्या जीव हमें पामर, पण अपना व्याम ने छताए। काया निचो बीने धर भी पाया, अमृत ना घूंटड़ा दयाए। 100 हम आए खार पण करता कदी, 100 हम आए खार पण करता कदी, ऋण आपनो ना चुकवाए, ऋण आपनो ना चुकवाए। पढ़नो सतवारो आपनो महंत जी, केने करी ना भुलाए। आज लाखों भक्त
महंत स्वामी महाराज के इस निस्वार्थ वात्सल्य का सत्संग में अनुभव कर रहे हैं। जीवन की इस यात्रा में हमें स्वामी श्री का दिव्य साथ मिला, अर्थात उनके स्वरूप में हमें साक्षात परब्रह्म भगवान स्वामी नारायण का साथ मिला। क्योंकि श्री जी महाराज वचनामृत में कहते हैं, ऐसे संत के नेत्रों में देखने वाले स्वयं भगवान हैं, उनके पैरों में चलने वाले भगवान हैं। इसी प्रकार उस संत की सभी इंद्रियों में भगवान का निवास है। ऐसे संत का दर्शन हुआ तब जानना कि मुझे साक्षात भगवान का दर्शन हुआ। इसीलिए आज लाखों भक्तों का हृदय कहता है, स्वामी आपकी छत्र छाया में हम धन्य धन्य हो गए हैं, धन्य धन्य हो गए हैं। इस विषय की विशेष बातों को हम कल की सभा में देखेंगे। तब तक आप सभी को जय स्वामीनारायण। Let me tell you a story. Many people have told it a miracle. બધા જ એક અવાજ એમ વાત કરે છે કે આ માણસની શક્તિથી થાય એવું છે જ નહીં. એક એવી ગાથા કે જે કોઈને માન્યા માનના. इतना बड़ा भव्य आयोजन ये आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। 21st century miracle of beacon of hope. 15,000 થી વધુ પાઠ પૂર્ણ કર્યો છે. સમયની તો કટોકટી હતી જ. It was a symphony of chaos. तो संसार में असंभव कुछ भी नहीं है, ये स्वामीनारायण संप्रदाय ने सिद्ध करके दिखाया है। આ એક ચમત્કાર છે, નવો ઇતિહાસ છે, મને દેખાય છે. તો આ ક્યારે રિલીઝ કરવા માટે? धन्योऽस्मि पूर्णकामोऽस्मि निष्पापो निर्भय सुखी अक्षर गुरु योगेन स्वामीनारायणाश्रया. गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे. श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे. श्रीहरिं